अटैक्स सेलिब्रिटीज पे हमेशा रहे हैं, रिसेंट टाइम्स में भी हमने भी सैफ पे भी देखा। हम वी आर ओपन टारगेट्स, हम अपने को शील्ड नहीं कर सकते, वी हैव टू बी स्ट्रांग। That's a price you have to pay for your fame. Whether you're an actor, politician, businessman, I think this is a price for being a hero. So then he said, when I started asking him, taking him into that area, earlier he was looking into the camera and talking. Then he said, can you just come and can I see your eyes? So I looked straight into the eyes and I said, you people really gave him a lot of tough time. It was a difficult time for him. He kept listening and he looked down. If you see the shot, Yes. he says, हाँ हमने बहुत तंग किया. And he apologized. And he was so emotionally choked because what he went through is a lot of pain. Filmmaker who's put everything on stake and a senior man troubled by मेरा रोज सुबह यही काम होता था, मैं मंदिर में जाता था, हे भगवान, आई शुड नॉट लूज माय कूल, वो थोड़े बच्चे हैं। So I went home and I discussed with my first felt कि कैसे डॉक्यूमेंट्री बनेगा, why should we pump about ourselves? I said no, it's not that. We are telling history. We are giving my father a name which people have forgotten. Unfortunately हमारे मुल्क के अंदर हमारे जितने भी ग्रेट्स हैं उनकी लाइफ डॉक्यूमेंट नहीं हुई। जैसे लता जी आज नहीं है हमारे बीच में, मैंने बहुत कोशिश की थी एक वक्त की मैं उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, तो 70 साल की म्यूजिकल इंडस्ट्री जो है उनके साथ चली गई। तो ये सही वक्त है कि हम अपने बारे में, हमारी स्ट्रगल के बारे में बताएं ताकि आने वाले जनरेशन्स को भी पता चले कि भाई जो हम देख रहे हैं सब चीज़ खूबसूरत नहीं है। Hi guys, this is Ankita Bhala. You're tuned to Bollywood Bubble, and today we are diving a little deep into the Roshans because Rakesh sir and Shashi sir have decided to actually take us through what prompted them to bring the story to life. Of course, there is so much to know, but where did the idea come from? A long time back, 8-10 years back, there was a transistor which came out and which had 5 to 10,000 songs and had everybody's music on it. Lyric writer, music director, actors. So we used to just type and those songs used to be played. So one day I wanted to hear my father's song. So I typed Roshan and there was no Roshan in it. So I was very disturbed that सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम है, सबके नाम है, खाली मेरे फादर का नाम नहीं है उसमें। So I was thinking what to do, how should I tell the world that my Roshan, my father, has also given very good compositions to the world. And in the meantime, then I and Rashi was sitting in my farmhouse and he was singing all my father's songs. And I said, you know all these songs? Well, yes, I know who's written the songs also. So I told him about my experience. He said, then why don't you make a documentary on him? That's the best way to do it. I said, yeah, that's a good idea. So I slept over it and the next morning when I met him, I said, it's a very good idea. Why can't we make a documentary on all the three Roshans? On the family tree. Yeah, because if we make only on my father, maybe today's generation might not connect. But we, as being as soldiers, Rakesh Roshan, Rajesh Roshan, Hrithik Roshan, we can push my father much further ahead. And he agreed immediately. Well, if this happens, it will be a very good thing. So I went home and I discussed with my family, Rajesh and Hrithik, and they also first felt कि कैसे documentary बनेगा? Why should we pump about ourselves, which we have not done up till now? I said, no, it's not that. We are telling history. Exactly. We are giving my father a name which people have forgotten. I think the rightful due because unfortunately हमारे मुल्क के अंदर हमारे जितने भी ग्रेट्स हैं उनकी लाइफ डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। Exactly. ऑडियो विजुअल तो है ही नहीं, अगर हैं तो कुछ किताबें हैं और किताबें जैसा आप जानते हैं कि नई जनरेशन किताबें नहीं पढ़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा स्पेस था। और मुझे लगता था हमेशा कि कोई भी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा या कोई भी फिल्म बफ जो हम सब हैं और सालों से रहे हैं और आगे भी चलेगा जनरेशन में, हिंदी सिनेमा इज़ लाइव एंड थ्रॉबिंग, तो इनकी कहानियाँ कौन बताएगा अगर ये नहीं रहे होंगे। जैसे लता जी
आज नहीं है हमारे बीच में। मैंने बहुत कोशिश की थी एक वक्त कि मैं उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, वो बस कहती रही हाँ बस अब करते हैं जाते हैं। तो 70 साल की म्यूज़िकल इंडस्ट्री जो है उनके साथ चली गई। Exactly. और वो किस्से, वो कहानियाँ कौन बताएगा वो जो उनके पास थे। तो ये हमेशा से मेरे जहन में था। और यूँ ही, और मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ, हिंदी फिल्म म्यूज़िक गाता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। जो रोशन साहब मेरे बहुत पसंदीदा कंपोज़र थे और हमेशा उनके गाने गाता था। तो जो ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो एक दिल से होता है ना कि वाह मिल गया मौका, भी हम करते हैं ये। पंजाबी में बोलते हैं मुरीदा नु मुरादा। हाँ, मुरीदा ने मुरादा। और फिर क्या हुआ कि मैं जो ही इनसे मेरा मतलब ये डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ताल्लुक़ बढ़ा, दोस्त तो ये मेरे पहले भी थे, लेकिन एक हमारा एक नया रिश्ता कायम हुआ, वो एक बहुत दिल का रिश्ता था। इन्होंने अपनी जो चीज़ें मुझसे शेयर की, इट वाज लाइक यू नो व्हेन यू सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट, यू वॉमिट आउट एवरीथिंग Yes. एंड यू आर नॉट अफ्रेड कि इसमें ये मेरी को जज करेगा या ये कहेगा कि अच्छी थी, ये बुरी थी। He did that to me and I started doing to that, and that his pain, his happiness became mine. Everything. Besides documentary, we became so close. I knew exactly who this man is. Then it went little ahead with the family people. And I think that's the unique thing which reflects in this documentary. कि इनका जो इमोशन है वो मेरी आंखों से या मेरे एफर्ट से वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है, और दैट इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग। लाइक गिल्टी एज चार्ज फर्स्ट एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट था, और मेरे लिए भी ये उतनी ही शर्मिंदा होने वाली बात भी थी कि वो गाने मुझे पता हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रोशन साहब की कॉम्पोजिशन है। जैसे कि इश्क इश्क वाली, इट टुक मी, आई एम लाइक हाउ ignorant of us also that we know the music but we don't know Who the created man it, who yeah. created the music. आपने जैसे शशि जी कहा मटेरियल कम था, क्योंकि हमारे पास कुछ पुराने डॉक्यूमेंटेशंस हैं ही नहीं। उन कहानियों को, उन सिंगर्स को, उन लोगों को ढूंढ के लाना, साथ में बिठाना, इवन फॉर रोशन साहब्स एपिसोड टू राजेश, राकेश एंड इवन ऋतिक, हाउ वाज इट टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर बिकॉज यू गॉट ऑलमोस्ट एवरीवन? तो इसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि लोग जो हैं बात करने के लिए तभी तत्पर होते हैं या खुश होते हैं जब उन्हें लगता है कि वाकई काम में कुछ दम था। तो पतली गली हो जाते हैं, कोई बोलता है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कोई ज़िंदगी ऐसी ही है। तो सबसे पहले तो ये था कि लोग, जब हमने रोशन साहब के पहला एपिसोड शूट जब शुरू किया, क्योंकि हम चाहते थे सारे सीनियर लोगों से हम बात करें, और जब मैंने राकेश जी ने बात शुरू की तो इतने खुश हुए कि हम रोशन साहब के बारे में बात करें। आशा ताई वाज माय फेवरेट। एंड तो एक सबसे बड़ा वो चीज़ पहलू था। सेकंड, ऑफ कोर्स द फैमिली हैज़ बीन इन द बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे आर गुड काइंड पीपल, सो दे हैव अ ट्रेमेंडस रेपो, एंड माई रेपो ऑल्सो एडिड टू दैट। एंड आई थिंक हमारी जो ऑनेस्ट अप्रोच भी थी उसने बहुत इम्पैक्ट डाला लोगों पे। लोगों को लगा कि ये कुछ अपना वो ड्रम बजाने वाला काम नहीं है। बिकॉज मैं लोगों से बात करता था कि आप जो भी कहना चाहें आप कहिए, हो सकता है अच्छी बात हो या नहीं हो, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप घबराइए मत। आपकी मैं सिर्फ इनकी तारीफ़ करवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जो उन्होंने की कि उन्होंने ग्रे साइड की भी बात की, ब्लैक की भी की, हर की ये ऑनेस्टी जो है, I think it was very, very rare, and that has come out very well in the documentary. राकेश सर, नॉर्मली हम बहुत इजीली बोल देते हैं डॉक्यूमेंट्रीज को देखते वक्त, जैसे सर बहुत बात कर रहे थे, एक सैनिटाइज वर्जन है, आप अपनी ही बड़ाई आगे करके ला रहे हैं। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप आर्टिस्ट भी हैं, क्रिएटर भी हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा भी हैं, खुद को भी ये कन्विंस करना कि मैं बस एक हिस्ट्री का एक पन्ना खोल रहा हूँ, अपनी वाहवाही नहीं कर रहा। जी हाँ, आप देखेंगे पूरी डॉक्यूमेंट्री में मैंने या राजेश ने या ऋतिक ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। Exactly. हमने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहा है, हमारी जर्नी के बारे में कहा है। हमने ये नहीं कहा कहीं पे कि मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन गया इसके बाद और फिर मेरे को ये हुआ, मेरा वो हुआ। नहीं, मेरे लिए हर फिल्म वॉज अ चैलेंज कि अगर एक पिक्चर थोड़ी सी कामयाब हो गई तो अब मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ। सो दैट kept me going, and that keeps Hrithik going. That kept my brother Rajesh Roshan going. If you hear his songs, अभी तो
हमने सिर्फ 4 ही एपिसोड्स बनाए हैं। अगर हमें लगाम नहीं दिया होता नेटफ्लिक्स ने तो हम और 4 मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी 1-2 और 4 एपिसोड्स का मटेरियल है हमारे पास। पर जो भी हुआ है, इट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट एंड इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। आई थैंक नेटफ्लिक्स फॉर दिस, फॉर हमारी जर्नी को एक्सेप्ट करना और नेटफ्लिक्स पे पूरे वर्ल्ड को दिखाना। और मैं दूसरी बात ऐड करूँगा कि नेटफ्लिक्स का मैं वाकई शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जॉनर जो है ना हमारे देश के अंदर डेवलप ही नहीं हो पाया। रेयरली और कुछ है। इतने ब्रिलियंट हमारे यहाँ मेकर्स हैं, यंगस्टर भी और पुराने भी, जो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली कहानी जो है, ये वो ड्राई जो इमेज है डॉक्यूमेंट्रीज़ की, उसको इन्होंने तोड़ा है कि एक डॉक्यूमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन भी दे रही है लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग है, वो आपके दिल को छू भी रही है, वो आपको हंसा भी रही है, रुला भी रही है, और इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ फिक्शन, but it is a documentary which is honestly made with honest people. So I think that is a great achievement and I thank Netflix and they should do many more. This was my first request to them कि अगर आप ये करेंगे तो इंडस्ट्री हमेशा के लिए आपकी शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की कहानियाँ कौन बताएगा? ये जो गुड्डू जी ने आज बात की है, या जो राजेश ने बात की है, या इतने सारे लोगों ने जो बात की है, ये जब नहीं होंगे तो नई जनरेशन को कैसे पता लगेगा? ये इनके मुंह से सुन के उनको, आपको जो असर हुआ वो आगे की जनरेशन्स को भी होगा। क्या है कि जो हम शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कोई और तो नहीं कह सकता। और किताब के जरिए नहीं आती है वो, विजुअल मीडियम है, तभी तो विजुअल सिनेमा से प्यार मीडियम है, तो विजुअल मीडियम का अलग तो एक चार्म मैंने है। सोचा ये सही वक्त है कि हम अपने बारे में, हमारी स्ट्रगल के बारे में बताएं, ताकि आने वाले जनरेशन्स को भी पता चले कि भाई जो हम देख रहे हैं सब चीज़ खूबसूरत नहीं है। एग्जैक्टली, उसके पीछे बहुत मेहनत है। मुझे आपकी डॉक्यूमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना है। मुझे शायद सबसे अनएक्सपेक्टेडली एंडेयरिंग शाहरुख खान का एक पोर्शन लगा जहाँ पे वो ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि मैंने कितना तंग किया है आपको, और मैंने उस टाइम पे सोचा भी नहीं कि मैं आपको एज अ मेकर इतना तंग कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं सलमान का भी एनेक्डोट मिस कर रही थी कि वो भी अगर बताते, बट आप ऐसी ऐसी कहानियाँ जब लेकर आते हैं एंड वो लोग जब सामने से बताते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? आपने उन एक्टर्स के साथ शूट किया, आपके पास कितना मटेरियल होगा? सो नहीं, तो ये देखिए क्या, ये इंसिडेंट जो था, ऐसे ही हम, फिर मैं और गुड्डू जी एक दूसरे से बात करते रहते थे, अपनी ज़िंदगियों के मैं रिकॉर्ड करता रहता था। ओह। हम 3-3, 4-4 घंटे, मेरे पास कम से कम 5 कैसेट हैं, तो हम ऐसे लगा के हम बात करते रहते थे। ये अपने जाते रहते, कभी उधर की बात, कभी इधर की बात, इधर की बात। सो वन डे ही केम टू दिस इंसिडेंट and he was so emotionally choked because what he went through is a lot of pain. And you can imagine a filmmaker who's put everything on stake, and a senior man, troubled by young kids at that and time. you can't do, it's such a helpless situation because अगर तो इन्होंने भगवान से दुआ मांगी कि भाई मुझे गुस्सा ना आए और ये किसी तरह पिक्चर पूरी हो जाए। मेरा रोज़ सुबह यही काम होता था। मैं मंदिर में जाता था, हे भगवान, आई शुड नॉट लूज माई कूल। वो थोड़े बच्चे हैं, नादान हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, बट आई शुड नॉट लूज माई कूल। एंड उस तरह फिर मैंने काम करवाया। और हम मानेंगे नहीं, बहुत अच्छी बात है, जब शशि शाहरुख से इंटरव्यू ले रहा था, उसको कुछ कहना भी नहीं पड़ा। उसका पहला सेंटेंस यही था शाहरुख का, हमने बहुत तंग किया उसको। क्योंकि शाहरुख जब आया तो मैंने गुड्डू जी से रिक्वेस्ट की, मैं गुड्डू जी आप चले जाएं, क्योंकि विश करने आए थे उसको। वो चला गया, तो वो बोला ठीक है। गुड्डू जी चले गए? मैंने कहा हाँ गुड्डू चले गए। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। मैंने कहा एक मेरी रिक्वेस्ट है, और ये आई थिंक यू आर अ वेरी आर्टिकुलेट मैन, यू डोंट हैव टू बी नाइस इन एवरीथिंग, ओके? सो सी सेज नो, नाइस इन, मैंने कहा नहीं, not here to just say good things. He got it immediately. He says, okay, you ask me whatever you want to ask me. And I said, I know that you will answer. और मैंने गुड्डू जी को बोला था, गुड्डू बोले ये देखो इसको कर देगा ये इधर ऐसे ऐसे घुमा के। मैं कहा नहीं, if I know him, he will answer honestly. So then he said, when I started asking him, taking him into that area, so earlier he was looking into the camera and talking. Then he says, can you just come and can I see your eyes?
So he wanted to know that what is my intention of asking Exactly. things. So I looked straight into the eyes and I said, "Ki you people really gave him a lot of tough time, and it was a difficult time for him." So he kept listening, and he looked down. If you see the shot, Yes. and he says, "हाँ हमने बहुत तंग किया." हमने बहुत तंग किया, मैं बहुत, आई एम हमने वेरी बहुत- सॉरी. And he apologized. So I think, and he added something very interesting. And then he said कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टर को हमेशा जो डायरेक्टर बताता है वही कर, उसी के सरेंडर. उसी की जो इमेजिनेशन है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए. ये एक्टर का काम नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ कि वो कैरेक्टर वैसा करेगा. सो आई थिंक he being a very articulate and intelligent man, he gave it so beautifully. Not only the answer, but the explanation of that behavior. Yes. And I think यही एक छोटे छोटे anecdotes थे which summed up to a point where I'm like, बहुत कम होता है कि डॉक्यूमेंट्री में भी आप मानेंगे लोग खुल कर आके बात करना चाहते हैं, अच्छा और बुरा दोनों के बारे में, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके पीयर्स हों. सर, एक आई नो वक्त की कमी है, एक लास्ट आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी. आपने जब अपने अटैक के बारे में बात करी जो आप पे हुआ उस टाइम पे, एंड देन यू स्टूड स्ट्रॉन्ग, एंड मेरे लिए वो बहुत कैप्टिवेटिंग था. आपकी एक लाइन थी कि ये खुद की गोली लगे हुए खुद को पुलिस पुलिस स्टेशन स्टेशन लेकर गए. इंडस्ट्री हमेशा से कहीं ना कहीं रिडल्ड रही है, न्यूज़ में रही है, अटैक्स सेलिब्रिटीज़ पे हमेशा रहे हैं. बहुत कम करेजियस लोग रहते हैं जो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में. रिसेंट टाइम्स में भी हमने भी सैफ पे भी देखा. आपको ऐसा क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि हम हमेशा न्यूज़ में रहेंगे, अच्छे बुरे हर चीज़ के लिए, और उससे बैटल करते वक्त हम आज यहाँ पर है. आपने इतना देखा है वक्त सर. You see, हम we are open targets. सॉफ्ट हम अपने आप में को शील्ड नहीं कर सकते, और जिसको भी कुछ करना है वो कर सकता है किसी वक्त. We have to be strong. We have to take care of ourselves. and it's so difficult to be a public mentally and figure. physically both. It's so challenging. Yeah, it's challenging, but yeah, but that's a price you have to pay for your fame and whatever you know are in a public space. Whether you're an actor, politician, businessman, I think this is a price for being a hero. And I think coming back to your first line, because this nation needs to know the stories, I think the actors will still come forward and tell all these stories. And I'm Look so forward. glad you did that. I mean, एक अंडरडॉग की स्टोरी से अच्छी, आई थिंक पूरी सीरीज को मैं अंडरडॉग की स्टोरी की तरह कहूँगी. I had a great time, and I think everyone who watches this equally has the great time because Thank there's you, so and much to learn. I'm very happy for my father because मुझे जितने भी messages आ रहे हैं, जितने भी phone calls आ रहे हैं, they are just praising my father's work. And apologies also that we were ignorant. I And think we I'm should feeling also so own that happy that he must be happy somewhere. Seeing all this, my son Rakesh Roshan and Rajesh Roshan and my grandson Ritik Roshan has put me on a pedestal again, which people will now remember him forever. एंड आई थिंक जो हमारे और 4 एपिसोड्स की आप बात कर रहे हैं वो किसी अनएडिटेड फुटेज में हमें ज़रूर दिखाइएगा. Sure. Definitely, sir. But thank you for entertaining. I think any form of cinema till the time it tells the best stories, Thank you. nothing like it. Thank you so much for Thank this. you. Thank Thank you. you.